Hello. Okay. Good morning, friends. The topic that we are going to discuss here is the thermodynamics. It's class 11th physics topic and really very important topic. So first of all, we are going to break this term thermodynamics into two parts. First one is the thermo. Second one is the dynamics. Ultimately, by breaking this term, what we are going to do, we are going to understand in the whole chapter with what concepts we are going to deal with. Okay, so thermo means in literal terms, thermo means heat. Okay, and dynamics means motion. Motion that you have studied. I mean, you have studied in the class 8, ninth. So heat. What is the heat? First of all, in the earlier times, heat was used to be considered as a form of a fluid. Okay, in the earlier times, I'm talking about way back, 200-300 years back, it was considered as a form of fluid. What is a fluid? Fluid is a substance. Fluid is a substance which is capable of flowing under the action of shear force. Mind this, I am not writing the complete definition. It is a substance. Fluid is a substance which is capable of flowing under the action of shear force. Okay. The term that is important here is a shear force. Okay. Mind this thing, my friends. Whatever term I am going to write here, I am going to explain that term in the very simplest manner. Okay. So, what I mentioned, I've broken down this term into two parts, thermo and dynamics. Thermo means heat and dynamics means motion. इसके बारे में हम बात करेंगे अभी. पहले हम इसके बारे में बात करते हैं. Thermo means heat. So in the earlier times, way back 200-300 years back, it was considered as a form of a fluid. फिर मैंने आपको बताया कि fluid क्या होता है. Fluid is a substance which is capable of flowing under the action of a shear force. Okay. अब shear force क्या होता है? ये टर्म आपके सामने भी नया आ गया. Shear force, for example, एक स्क्वायर ब्लॉक रखा हुआ है, एक प्लेन में एक स्क्वायर ब्लॉक रखा हुआ है और इस स्क्वायर ब्लॉक के ऊपर इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स लाइक दिस, ओके, मींस अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, यू कैन सी इट, दिस इज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, फॉर एग्जांपल 1 बाय 1 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है. इसके ऊपर का ये जो एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर आप एक फोर्स लगा रहे हैं. यू आर अप्लाइंग अ फोर्स which is parallel. देखिए ये बिल्कुल पैरेलल जा रहा है इस ब्लॉक के ऊपर. ओके, when this force acts parallel to the cross sectional area, then this force is termed as a shear force. इसको आप tangential force भी कहते हैं. This is also called as tangential force. Okay, so this is the basic definition of a shear force. तो आपने समझा fluid. अभी देखिए, although the topic is thermodynamics, but उसका एक टर्म हमारे सामने आया heat, और heat के बारे में सिर्फ आपको इतना जानना जरूरी है कि in the earlier times we used to consider it as a form of fluid, but from the last 100 years it was established with the help of experiment. Heat is nothing but a form of energy. What is heat? Heat is nothing but form of energy. ये एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है. This definition, this assumption was discarded. This assumption was discarded that heat is a form of fluid. It is wrong to say heat is a form of fluid. Heat is nothing but a form of energy. And which form of energy? Heat is nothing but thermal form of energy. It is nothing but thermal form of energy. Okay? अब देखिए आपके सामने एक नया टर्म आ गया, एनर्जी. एनर्जी की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. दैट्स इट. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. अब आपके सामने एक टर्म आया कि भैया हीट इज अ फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी. अब इस डेफिनेशन को आप भूल जाइए. दिस डेफिनेशन वाज डिस्कार्डेड. इसको रिजेक्ट कर दिया गया था कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ फ्लूइड. ओके, दिस इज नाउ व्हाट वी एक्सेप्ट इज कंप्लीटली कि हीट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. पर आपने यहां पर ये पढ़ते वक्त कि व्हाट इज अ फ्लूइड, आपने एक नया टर्म सीख लिया. व्हाट इज अ शियर फोर्स, व्हाट इज अ टेंजेंशियल फोर्स. whenever any force acts parallel to the cross sectional area of any object, and that force is called as a shear force or tangential force. But for the time being, अब जो हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स में, थर्मो के अंदर छुपा है हीट. थर्मो मींस होता है, लिटरल मीनिंग होती है थर्मो की हीट. समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द टेंपरेचर. समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द टेंपरेचर. तो अब आपने हीट का मतलब समझा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी.
Next thing what you have understood, which form of energy heat is? Heat is a form of thermal energy. Okay, and again their doubt arises कि भैया thermal energy क्या होती है? Okay, so thermal energy is the energy which has a certain, thermal energy is a kind of energy which has a certain temperature and pressure potential. ऐसा form of energy जिसमें कुछ temperature और pressure potential हो, which has a certain temperature, अभी मैं pressure की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ temperature की बात करूंगा, which has a certain temperature और pressure potential. Okay, अगेन आपके सामने टर्म आ गया टेम्परेचर. कोई आपसे सडनली पूछ ले व्हाट इज टेम्परेचर, तो आपको क्या बोल रहे हैं? टेम्परेचर इज नथिंग बट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज नथिंग बट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. हॉटनेस और कोल्डनेस. दिस इज वेरी सिंपल डेफिनेशंस. These are very simple terms और इसी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के साथ आप डील कर रहे हैं. In the very first introduction, sometimes happens कि suddenly आपसे कोई पूछ लेता what is the temperature, what is the heat, okay? कोई आपसे बोलता है what is the heat, आप बोल दो heat is form of energy. But कोई आपसे पूछ ले which form of energy, तो what you are going to say? Heat is nothing but form of a thermal energy. कोई आपसे पूछे what is thermal energy, तो आप बोलोगे the thermal energy is a form of energy which has a certain temperature and pressure potential. Okay? Now अभी आपको जो इस थर्मोडायनेमिक्स टर्म में पहले टर्म को ब्रेक करने के बाद मिला, दैट इज नथिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हीट. बाकी सब आप भूल जाइए, मतलब नोट डाउन कर लीजिए. ओके, आपने इस टर्म को ब्रेक किया थर्मो एंड यू अल्टीमेटली गॉट हीट. नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड टर्म दैट्स मोशन. फॉर मोशन टू अकर, अगर आपको मोशन लाना है तो आपको पावर अप्लाई करना पड़ेगा. करेक्ट? अगर इस ऑब्जेक्ट को आपको मोशन में लाना है, अल्टीमेटली फोर्स, तो आपको इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो यू नीड टू हैव सम पावर. आपको कुछ पावर अप्लाई करना पड़ेगा. यू नीड टू हैव सम पावर. ओके, और पावर का मतलब क्या होता है? पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क. व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो माय डियर फ्रेंड्स, इस थर्मोडायनामिक्स को जब आपने ब्रेक किया तो थर्मो का मतलब मिला आपको हीट एंड डायनामिक्स का मतलब मिला मोशन. मोशन से आप समझा कि फॉर मोशन टू ओकर यू नीड टू हैव अ पावर. एंड व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क. सो अल्टीमेटली थर्मोडायनामिक्स में, इन द थर्मोडायनामिक्स, व्हाट आर द टू टर्म्स दैट यू गॉट? वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट वन इज द हीट एंड सेकंड वन इज द वर्क. ये दो कीवर्ड्स हैं. these two keywords, these are really very important keywords in thermodynamics. आप पूरे चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स के either you are going to study the conversion of heat into work, या तो आप हीट का कन्वर्जन देखेंगे वर्क में, या वर्क का कन्वर्जन देखेंगे हीट में. माइंड इट माय डियर फ्रेंड्स, इस थर्मोडायनामिक्स टर्म की डेफिनेशन अभी मेंशन नहीं करी है मैंने, सिर्फ आपको इस टर्म को ब्रेक करके ये बताया है कि इस टर्म के अंदर छुपा क्या होता है. फर्स्ट वन इज अ हीट, सेकंड वन इज अ वर्क, एंड बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जीज. बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक तरह के एनर्जी के फॉर्म है. ओके, और आप पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? इधर हीट का कन्वर्जन आप वर्क में पढ़ेंगे या फिर वर्क का कन्वर्जन हीट में पढ़ेंगे. सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि वर्क का कन्वर्जन हीट में, सर कोई एग्जांपल दीजिए, तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है. इफ यू आर गोइंग टू रब योर हैंड्स, अगर आप अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, एक दूसरे को ऐसे रब करेंगे, तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर डूइंग वर्क. आप कुछ काम कर रहे हैं. ठीक है, आप अपनी अंदर की एनर्जी का यूज कर रहे हैं. यू आर डूइंग सम वर्क एंड आफ्टर सम टाइम यू व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इज कि आपके हाथ गर्म हो जाएंगे. ओके, तो आपने वर्क किया और हाथ आपका गर्म हो गया, मतलब कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट. ओके, दिस इज अ वेरी सिंपल बेसिक एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट. देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स, पर फिलहाल मैं एक एग्जांपल मेंशन कर रहा हूं. नाउ द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, आप कहेंगे सर इसका भी एक एग्जांपल दीजिए. ओके, तो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क आप देखेंगे बहुत ही बेसिक एग्जांपल है पावर प्लांट. ओके, व्हाट इज अ पावर प्लांट? जहां पर एनर्जी जनरेट होती है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वहां पर क्या होता है? हीट एनर्जी इज यूज्ड. ठीक है, जैसे आप कोल को बर्न करते हैं, फॉर एग्जांपल कोल को बर्न करेंगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी. उस हीट एनर्जी से आप क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं. ओके, उससे स्टीम बनेगी. स्टीम फिर टरबाइन को रन करेगी. टरबाइन को जब रन करेगी फिर फर्दर शाफ्ट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. वो पूरा प्रोसेस समझाने की यहाँ जरूरत नहीं है, बट बेसिक एग्जांपल जो है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज अ पावर प्लांट. ओके, so in thermodynamics, after breaking the term thermodynamics, you got the two keywords heat and work. This is the conclusion of the story. This is the moral of the story. कि thermodynamics break करने पर आपको दो टर्म मिलते हैं, heat and work. Both are form of energies. Mind it, both are form of energies.
और पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, इधर कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क और कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट। ओके, नाउ आई एम कमिंग बैक टू द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी सिर्फ आपने इस थर्मोडायनामिक्स को ब्रेक किया है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, thermodynamics is a branch of science which deals with energy transfer, which deals with energy transfer and its effect on the properties of system and its effect on the properties of system। My dear friends, जब भी कोई डेफिनेशन आपके सामने आए, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकती है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, पर आप उस डेफिनेशन में कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करिए। कीवर्ड्स मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन दैट डेफिनेशन जो आपको टफ अपीयर हो। ओके, तो आपके सामने जो कीवर्ड्स आपको टफ अपीयर हो रहे हैं, फर्स्ट वन इज द एनर्जी ट्रांसफर, सेकंड टर्म इज द प्रॉपर्टीज, थर्ड वन इज द सिस्टम। ओके, बाकी सब तो ग्रामर है। ठीक है, तो आप थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन आपने देखा, तीन कीवर्ड्स आपके सामने आए। जब ये समझ में आ जाएंगे तो आपको थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। ओके, तो एनर्जी ट्रांसफर की मैं बात कर रहा हूं, तो एक बात बताइए मुझे, अभी जस्ट मैंने थर्मोडायनामिक्स को दो पार्ट में ब्रेक किया और आपको क्या कीवर्ड्स मिले वहां से, हीट एंड वर्क, और मैंने क्या कहा कि हीट एंड वर्क आर नथिंग बट फॉर्म ऑफ एनर्जीज। तो ये उसी एनर्जी ट्रांसफर की बात कर रहा है। ये डेफिनेशन जो है उसी दोनों एनर्जी ट्रांसफर, इसी दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जी के ट्रांसफर की बात कर रहा है। फर्स्ट वन इज द हीट, सेकंड वन इज वर्क। ओके, तो एनर्जी ट्रांसफर तो क्लियर हो गया हमारा कि एनर्जी ट्रांसफर मतलब मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने ये वर्क किया तो हीट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुई। ओके, इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में, बट फॉर द टाइम बीइंग आप समझ गए यहां पर इस डेफिनेशन में एनर्जी ट्रांसफर का मतलब है ईदर ट्रांसफर ऑफ हीट और वर्क, ओके, या कन्वर्जन ऑफ हीट और वर्क। ओके, ईदर वर्क इनटू हीट और हीट इनटू वर्क। ओके, नाउ सेकंड कीवर्ड आपके सामने आया प्रॉपर्टीज। ओके, प्रॉपर्टीज की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि अगर मैं डेफिनेशन बोल देता हूं तो इसका मतलब समझा दूंगा कि प्रॉपर्टीज मींस एनी मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, एनी मेजरेबल, माइंड दिस टर्म मेजरेबल, माइंड दिस टर्म मेजरेबल मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर पाओ, ऐसी कोई चीज जिसको आप क्वांटिफाई कर पाओ। क्वांटिफाई करने का मतलब नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाए। एनीथिंग दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। फॉर एग्जांपल, आप मास को एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये मैटर रखा हुआ है, इसकी विशेषताएं आपको बतानी है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको बतानी है, तो आप इसकी लेंथ बता सकते हैं, तो लेंथ इज आल्सो अ प्रॉपर्टी, लेंथ बिकम्स अ प्रॉपर्टी। आप इसका मास बता सकते हैं, मतलब उसको आप क्वांटिफाई कर पा रहे हो नंबर में अलोंग विद सम यूनिट। मास आप बोल सकते हो भैया इसका 50 ग्राम है। ठीक है, तो ये देखो 50 इज अ नंबर, आप क्वांटिफाई कर पाए नंबर्स में। ऐसी कोई चीज जिसको आप मेजर कर पाओ, नंबर्स में क्वांटिफाई कर पाओ, वो कहलाती है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। ओके, तो फिर दिमाग में आता है ऐसी कौन सी चीज है सर जिसको आप क्वांटिफाई ना कर पाओ, नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाओ। फॉर एग्जांपल ऑर्डर, स्मेल। ठीक है, आप कभी ये नहीं कहोगे कि मैंने 15 स्मेल किया, 20 स्मेल किया। ओके, या फिर टेस्ट कि सर ये 20 मीठा है, 15 मीठा है। तो स्वीटनेस इज आल्सो नॉट अ प्रॉपर्टी। ओके, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन नंबर along with some unit, that thing is called as a property. For example, mass, length, time, current, charge, all these things are property. Okay, now the third keyword is thermodynamics की definition में पहला keyword आपने break down कर लिया। energy transfer means heat and work का transfer। properties का मतलब आपने समझ लिया, ऐसी कोई चीज जिसको आप measure कर पाओ। system का मतलब होता है a region in a space where your study is focused, ऐसा कोई region जहां पर आपकी study focus हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई पावर प्लांट है, उसमें एक टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन इज अ रोटेटिंग डिवाइस। एक ऐसा शाफ्ट होगा, ठीक है, लंबा सा शाफ्ट होगा, इसमें से ब्लेड्स लगी होंगी। ओके, ठीक है, ये रोटेट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये टरबाइन का सिंबल मैंने बना दिया। ओके, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टरबाइन। ठीक है, जब आपको ब्लॉक डायग्राम बनाने होते हैं तब ऐसा सिंबल यूज करते हैं आप टरबाइन के। ये शाफ्ट है आगे पीछे। ओके, तो ये टरबाइन है। अगर मैं पूछूं भैया आपका सिस्टम क्या है यहाँ पर, तो सिस्टम आप कुछ भी मान सकते हो।
इट डिपेंड्स अपॉन यू। इस टरबाइन को मैंने सिस्टम मान लिया और मैं उसको ऐसे हाईलाइट कर दूंगा, ऐसे डैश डैश से कवर कर दूंगा और मैं कह दूंगा जैसे डैश डैश कवर है, मैं कह दूंगा दिस इज नथिंग बट आवर सिस्टम। ये क्या है? अपना एक सिस्टम। अब मुझे बाकी संसार से मतलब नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, ठीक है? मैं सिर्फ सिस्टम पे फोकस्ड हूं। मैं सिस्टम की प्रॉपर्टीज की बात करूंगा कि सिस्टम के अंदर टेंपरेचर कितना है। टेंपरेचर प्रेशर इज आल्सो अ प्रॉपर्टी जिसको आप मेजर कर सकते हो, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो मैं सिर्फ यहाँ टरबाइन की बात करूंगा बिकॉज मैंने डैश डैश लगा के ये दिखा दिया है कि भैया मेरा सिस्टम ये है। दिस इज द रीजन वेयर माय स्टडी इज फोकस्ड। दिस इज द रीजन जहां की मैं प्रॉपर्टीज पढ़ना चाहूंगा। ओके, so this is a complete definition of the thermodynamics. It is a branch of science which deals with the energy transfer and its effect on the properties of the system. अब यहाँ पर एक टर्म और आ रहा है इफेक्ट, बट इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे किस इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हमने थर्मोडायनामिक्स टर्म को ब्रेक किया, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्ट। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।